लास्ट ईयर हमने सीखा था टेंस अबाउट टेंसेस। टेंसेस में हमने देखे थे देर आर 12, देर आर मेन 3 टेंसेस एंड देर आर फोर फॉर्म्स इन एवरी टेंस। ओके, तो हर एक टेंस के 4 फॉर्म है, जिससे हमें अलग अलग कितने फॉर्म मिलेंगे? 12 फॉर्म्स मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहला जो टेंस होता है वो है प्रेजेंट टेंस। ओके, तो हमें सबसे पहला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 मेन टेंसेस कौन से है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, 3 मेन टेंसेस होते हैं। इन तीनों टेंसेस के 4 फॉर्म होते हैं। ओके, वो 4 फॉर्म आपको क्लियर है? कि हमने आपको बताया था इन तीनों टेंस के 4 फॉर्म होते हैं। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट। ओके, तो ये चारों फॉर्म होते हैं, हर एक के 4 फॉर्म। पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नाउ पास्ट। पास्ट के भी 4 फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, उसी तरीके से फ्यूचर का भी है, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ओके, एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहला इसके अंदर टॉपिक है प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हाट इज द यूज of simple present tense in our life? Okay, we are using this present tense to talk about habits and routines, permanent situations, facts and states. Now what is the meaning of states? States, that means your conditions, your positions. Okay, that means states. Okay, habits and routines, permanent situation, facts and states. Now structure of simple present tense. So the structure of simple present tense is subject plus verb 1 object. Remember, here we always use form of verb. Okay, and as a subject you can use here I, you, we, they, he, she, it or the name. Okay, यहाँ पे आप सब्जेक्ट के रूप में इनको यूज करेंगे या तो नाम लिखेंगे। बट रिमेंबर, जब भी आप यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप यूज करते हैं, उसका टेंस बनाते हैं, उसके सेंटेंसेस बनाते हैं, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सब्जेक्ट के डिपेंडेंट होता है वर्ब में हमें एस ऐड करना है या ईएस ऐड करना है या नहीं करना है। Okay, so we use simple presents in habits and routines, permanent situations, facts and states. When we talk about how to make sentences, at that time we use subject plus verb plus object. But remember, we use as or es with verb when subject is third person. Okay, like he, she, it and the name.
Okay, now here are some examples of habits and routines examples. Okay, now how to write the sentences. Okay, I drink tea every morning. This is what? Habit. Okay, so we can see here we use simple present tense to talk about habits. You can't write like this, I am drinking tea every morning. Okay, आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, it would be wrong. Okay, now second sentence, Mike's visits. Now you can see here I drink, I जो subject है, दिस इज व्हाट, इट्स फर्स्ट पर्सन. ओके, तो यहाँ पे वर्ब में हमने एस और यस ऐड नहीं किया, बट माइक, माइक इज हिज नेम. नाउ इट इज व्हाट, थर्ड पर्सन. हियर वी यूज एस विद वर्ब विजिट्स. ओके, Mike visits his parents on weekends. Now you can see here every weekend. Okay, so here Mike visits his parents on every weekend. So it is what? It is about permanent situation. It is about habit. Okay. So when you are saying like this, Mike is visiting his parents on weekends, that is wrong. It would be wrong. Now third sentence, Emma usually has dinner at 8:30. Okay. Now sentence, Emma is usually has dinner at 8:30. Now here you can see here we use is. Okay, is it sentence of simple present tense? Yes, because here we use is to talk about Emma is usually has. Usually. Okay, here we use usually for timing words. Okay, Emma usually has dinner at 8:30. तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से बोलते हैं, if we say like this, Emma is usually having dinner at 8:30, it would be wrong. Now we use some timing words, some expressions to talk about habits, permanent situation, facts and states. At that time we use some expressions. So how can we use that? Okay, you can see here it is a frequency expressions. We use every time with ending of the words like every morning, every afternoon. तो यहाँ पे जो हम every morning, every afternoon, every weekend, okay, या every week, every month or year, इस तरीके का जो टाइमिंग वर्ड हम यूज करते हैं to talk about habits and situations and routines, तो यहाँ पे हम इन वर्ड्स को कैसे यूज करेंगे वो बताया गया यहाँ पे. ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून, डे, वीक, मंथ, ईयर, समर और विंटर. ओके, एवरी समर. ओके, एवरी समर ही गोज टू वैकेशन. ओके, तो हर गर्मी में वो वैकेशन पे जाता है, ऐसा बताना है तो हम क्या करते हैं, एवरी समर इस तरीके का वर्ड यूज करते हैं, एवरी विंटर इस तरीके का. तो वो भी एक कैसा हो जाता है कि परमानेंट तरीके से एक रूटीन हो जाता है कि हाँ वो एवरी समर वो जाता है. ओके, तो इस तरीके के जो फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशन है हम मोस्ट ऑफ यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ऑन संडेज. Now, what is this on Sundays? On Sundays, that means every Sundays. But you can't write here every Sundays. You have to write there on Sundays, on Fridays, on weekends, in spring, in the summer, in the winter. Okay. तो इस तरीके से हम यहाँ पे frequency expressions use करते हैं. Now, once a day. ओके, अगर कोई भी व्यक्ति कोई एक्सरसाइज करता है तो वंस अ डे वो कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, या वंस अ वीक सप्ताह में एक बार, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ ईयर. इस तरीके के वर्ड हम यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसीज के साथ हम यूज करेंगे. नाउ यहाँ पे हम जब यूज करते हैं ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, ऑफन, समटाइम, occasionally, seldom, rarely, तो ये कौन सी चीज कितने परसेंट हो. ऑलवेज का मतलब होता है कि कोई भी जो आप एक्शन कर रहे हैं
वो 100% रेगुलरली होती है, तो वहां पे हम ऑलवेज यूज करते हैं। लाइक मीना ऑलवेज वॉक्स, ओके। नाउ 90% दैट मीन्स यूजली, ओके। यूजली वर्ड हम कहां पे यूज करेंगे, जब भी कोई एक्शन 90% हो, ओके। मतलब आप कभी कभार मोस्ट ऑफ आप वो काम करते ही हैं, लेकिन कभी कभार वो काम नहीं होता है, तो एट दैट टाइम वी यूज व्हाट, यूजली, ओके। तो हम इस फ्रीक्वेंसी एडवर्ब को यूज करेंगे। नाउ जनरली व्हेन योर एक्शन इज 80%, ओके, अगर आपका एक्शन वो 80% वो होता ही है, वो हैबिट्स में है, तो एट दैट टाइम वी यूज जनरली, 75% ऑफन, 50% समटाइम, ओके। मतलब कभी कभी हमने किया, कभी नहीं किया। 25% दैट मीन्स ऑकेजनली, ओके। ऑकेजनली आप काम करते हो, एट दैट टाइम इट इज व्हाट एक्शन इज डूइंग इन only in 25%, so that is what occasionally। 10% seldom, बहुत ही कम। 5% rarely, तो उसके लिए भी यहाँ पे एग्जाम्पल है, जॉन समटाइम्स प्लेज वीडियो गेम्स। व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्डम एंड rarely, I rarely watch TV, okay। नाउ हार्डली एवर, मतलब बहुत ही कम, बहुत ही मुश्किल से वो एक्शन होती हो, ठीक है, तो एट दैट टाइम वी यूज हार्डली एवर। नेवर का मतलब आपको पता ही है, जो कभी भी कोई कार्य ना किया जा रहा हो, जैसे कि आई नेवर रीड बुक, ओके। तो इस तरीके के काम में हम क्या करते हैं, नेवर का यूज करते हैं, बट वो सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होता है। नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स, ओके। दे गो टू मैक्सिको ऑन वैकेशंस एवरी ईयर, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी थी हमने जो यूज की थी एवरी ईयर, वो यहाँ आ चुकी है। किस तरीके से इस फ्रीक्वेंसी एडवर्ब को हम यूज करेंगे इस सेंटेंस में देख सकते हैं। दे गो टू मैक्सिको ऑन वैकेशन एवरी ईयर, तो वो मैक्सिको जाते हैं हर साल वैकेशन पे, ओके। तो इट इज व्हाट, ये भी एक यहाँ पे एक परमानेंट सिचुएशन के रूप में, एक हैबिट के रूप में यहाँ पे बता दिया गया। दिनेश गोज फिशिंग ऑन फ्राइडेज। नाउ हियर यू कैन सी ऑन फ्राइडेज, तो हर फ्राइडे को वो जाता है, इसलिए यहाँ पे फ्राइडेज लिखा हुआ है, ओके। वी विजिट द डेंटिस्ट ट्वाइस अ ईयर फॉर चेकअप, तो अब यहाँ पे हम देखिए मोस्ट ऑफ हम क्या कहते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हम रेगुलर, जो हम रूटीन है हमारा, जो रेगुलर की क्रियाएं, रोजिंदा क्रियाएं, उसकी बात करते हैं, ओके। एकदम करेक्ट है, बट यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि ट्वाइस अ ईयर वो जो रूटीन है वो बना रहता है, तो उसको भी हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखते हैं, ओके। तो इन सेंटेंस से हमें पता चलता है, जैसे कि दे गो टू मैक्सिको ऑन वैकेशन एवरी ईयर, दिनेश गोज फिशिंग ऑन फ्राइडेज, ओके, ऑन फ्राइडेज, एंड वी विजिट द डेंटिस्ट twice a year for checkup, okay। सिचुएशन, परमानेंट सिचुएशन क्या होती है इसके अंदर, ओके। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम परमानेंट सिचुएशन की बात करते हैं, तो ये परमानेंट सिचुएशन है क्या। नाउ वी कैन सी हियर द एग्जांपल, माय ब्रदर लिव्स इन अमेरिका, मेरा भाई अमेरिका में रहता है। आप इस सेंटेंस को इस तरीके से नहीं बोल सकते, मैं ब्रदर इज लिविंग इन अमेरिका, ओके। आप प्रेजेंट टेंस में आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आईएनजी फॉर्म आप यूज नहीं करेंगे, ओके। इफ यू यूज आईएनजी फॉर्म इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट मेक्स द सिचुएशन टेम्पररी, ओके, नॉट परमानेंट, ओके। टेम्पररी हो जाता है, वो परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि मेरा भाई अमेरिका में रह रहा है, आगे रहेगा नहीं रहेगा, वो एक परमानेंट सिचुएशन नहीं है। तो परमानेंट सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं माय ब्रदर लिव्स इन अमेरिका, वो अमेरिका में रहता है, ओके। तो टेम्पररी सिचुएशन के लिए हम आईएनजी वर्ड यूज करते हैं, बट
यहाँ पे जब हम बात करते हैं फॉर परमानेंट सिचुएशन एट दैट टाइम यू कांट यूज दिस वर्ड आईएनजी फॉर्म। जब हम देखते हैं बहुत से लोग बातचीत करते हुए बताते हैं माय ब्रदर इज लिविंग इन अमेरिका, या कोई भी रिलेटिव है उनको बताने के लिए जो वो बात करते हैं तो इस तरीके से बोलते हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे एक तरीके से आप इसे सीख कर एक स्पीकिंग स्किल भी सीख सकते हैं अगर आपका टेंस क्लियर है। एवरी ग्रामर बेसिस इज व्हाट यू नो टेंस। अगर आपका टेंस क्लियर है तो उसके बाद आपका वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या पूरा ग्रामर का जो बेस है आपका यही है टेंस। टेंस क्लियर होगा तो आपका सब कुछ क्लियर होगा। ओके, नाउ ओके, नाउ टेम्पररी सिचुएशन में हमने देखा आईएनजी फॉर्म यूज किया गया। सेकंड एग्जांपल, ऑल्गा स्पीक्स स्पेनिश। तो ये बहुत ही सिंपल से ऑल्गा बस स्पेनिश बोलता है। ऑल्गा इज रियली, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये नेम, तो ये नेम है स्पेनिश नेम है इसलिए यहाँ पे ऑल्गा लिखा हुआ है। ऑल्गा स्पीक्स स्पेनिश, आई वर्क एज टीचर। इट इज व्हाट परमानेंट सिचुएशन। हम देखते हैं मोस्ट ऑफ लोग, हम जब बातचीत कर रहे थे, जब अपने प्रोफेशन की बात करते हैं तो वो इस तरीके से कहते हैं आई एम वर्किंग एज ए टीचर। ओके, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज नॉट परमानेंट सिचुएशन। जब आप इस तरीके से कहते हैं आई एम वर्किंग एज ए टीचर तो ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है। लेकिन जब हम बात कहते हैं आई वर्क एज ए टीचर, मैं एक टीचर के रूप एज ए टीचर काम करती हूँ या एज ए टीचर काम कर रही हूँ, इसमें फर्क है। ओके, कर रही हूँ दैट इज नॉट परमानेंट सिचुएशन, बट व्हेन आई से आई वर्क एज ए टीचर दैट इज व्हाट इट्स अ परमानेंट सिचुएशन। और ये सेंटेंस भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है। नाउ व्हाट अबाउट फैक्ट्स, यू नो वेरी वेल फैक्ट्स इज व्हाट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट आपका हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। लाइक द कैपिटल ऑफ कनाडा इज ओटावा। ना अब यहाँ पे देख सकते हैं जो फैक्ट है, जो ट्रूथ है वो है, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट है वह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है। एट 100 डिग्री सेल्सियस, okay, 2 plus 2 equals 4. It is what? It is facts. You know very well. You can't change it. So here we also use simple present tense. Now, state. That means I want ice cream. Here is the example. State. I want ice cream. Right now you want ice cream. This is your state. ना एक्टिविटीज हम यहाँ पे ज्यादा देखते हैं। एक्टिविटीज एंड स्टेट में क्या फर्क है? आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, इट इज व्हाट एक्टिविटी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेट, आई वांट आइसक्रीम, आई एम ड्रिंकिंग टी, आई एम वांटिंग आइसक्रीम, दैट इज रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे स्टेट के भी कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें हम इस तरीके से जो हमारी नीड फ्रीक्वेंट है उसको हम स्टेट में रखते हैं। ओके, अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम किस तरीके से यूज करते हैं और स्टेट्स में किस तरीके से आता है। वांट्स एंड लाइक्स को यहाँ पे हम लाइक, हेट, वर्ड, वांट और विश। थॉट एंड opinions of think, remember, forget, know, believe and imagine. But when we talk about senses, at that time you say, यहाँ पे this is the form of simple present tense. Okay, but when we talk these forms in state with state verb, at that time you change it into thoughts and opinion की जब आप बात करते हो तो वहां पे आप लिखेंगे I think या I remember, okay, and I forget। तो यहाँ पे थिंक एंड ओपिनियन की बात, थॉट्स एंड ओपिनियन की बात हो तो इस तरीके के वर्ब यूज करेंगे। सेंसेस की बात है तो हम यूज करेंगे यहाँ पे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फीड। अपीयरेंस सेम, जब हम अपीयरेंस की बात करते हैं एट दैट टाइम सेम, लुक, लुक लाइक,
appear, resemble or sound. But when we talk about possession and relation, have, on, belong and passes. And last, other state verbs, coast, depend, include, involves, condition and lock. Okay. ओके यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हमने कि किस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें यूज करने चाहिए अगर हम उसको दूसरे तरीके से फॉर्म यूज करते हैं। तो आईएनजी फॉर्म अगर हम यूज करते हैं दैट इज रॉन्ग। ओके, आईएनजी फॉर्म हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ जो आईएनजी फॉर्म होते हैं वो हम कंटिन्यूस में यूज करते हैं। ओके, तो यू नो वेरी वेल। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। सुजैन लव्स टू सिंग, आई हेट crowded places. I think Ben is really smart. So I think Ben is really smart. It is also simple present tense sentence. Okay, your perfume smells really nice. Okay, that house seems to be empty. Okay, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है ये, तो ये आपको वीडियो सेंड कर दिए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर दी है। ओके, नाउ आस्क सम क्वेश्चंस। अब मैं आपको इससे रिलेटेड आपको होमवर्क सेंड करूंगी। हाँ, एनसीईआरटी बुक ही है। नाउ आस्क क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। नोबडी? ओके, ये हाँ आपका होमवर्क ये है। यहाँ पे आपको बताना है इन द फॉलोइंग सेंटेंस मेक करेक्शन वेयर नेसेसरी। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस सेंटेंस में कहां पे करेक्शन करने की जरूरत है। ओके, ये सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर नहीं है तो कहां पे करेक्शन करने की जरूरत है जिससे सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो जाए। यस, आपको हर एक पेज के फोटो मिल जाएंगे। मीट। ओके, इट्स योर होमवर्क। आई विल सेंड यू पिक ऑफ दिस होमवर्क। जो आपका ज्ञानज्योत विद्यालय ग्रुप है तो उसके अंदर आपको ये होमवर्क की पिक आपको मिल जाएगी। ओके, ओके, ओके। अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। 36 बच्चे जुड़े हैं यहाँ पे। 36 में से 25 बच्चे प्रेजेंट है यहाँ पे। आपकी अटेंडेंस ये तुरंत ही जाएगी एंड ये आपकी अटेंडेंस जो ज्ञानज्योत विद्यालय का आपका ऐप है उसके अंदर भी सेंड की जाएगी। विवेक गुप्ता, मैम पीछे के पेज में एक प्रॉब्लम है। ओके, यस विवेक, आस्क विच पेज? इसके भी पीछे मैम। यस, ओके, ये हाँ, आई एम ड्रिंकिंग टी। तो मैम ये तो परमानेंटली नहीं है ना, टेम्पररी है ना ड्रिंकिंग वाला। हाँ, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग बोला गया ना। ये आई एम ड्रिंकिंग टी, इट इज नॉट, इट इज, इसको एक्टिविटी में रखा गया है। बट इसके अंदर ये रॉन्ग है, ये सही है। आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, बट यू कांट राइट लाइक दिस, आई एम ड्रिंकिंग टी। ओके, लेकिन जब हम स्टेट की बात करते हैं, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में मुझे स्टेट की बात करनी, आई एम ड्रिंकिंग टी, ये नहीं बोलेंगे आप ये बोलोगे आई वॉन्ट टी, मुझे चाय चाहिए। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे एक एग्जांपल है, आई वॉन्ट आइसक्रीम। ओके, नाइस। आई लाइक इफ यू आस्क क्वेश्चंस। अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। आपका भी अगर यू नो रिस्पॉन्स हो तो
क्वेश्चन वही करते हैं जो समझने की कोशिश करना चाहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन अगर कहीं भी डाउट होता है तो जरूर पूछे। आप यहाँ नहीं पूछ सकते तो पर्सनली पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। ओके, तो आपके क्लास का ये टाइम 9:05 तक का है। ओके, अभी एक ही क्वेश्चन मिला मुझे, मित ने कहा ये पेजेस उनको प्रोवाइड हो। ओके, तो वो मिल जाएगा एंड अभी आप क्लास लीव कर सकते हो। आपको क्लास खुद ही लीव करना है। अगर आपको यहाँ पे आप सेल्फ लीव ही होंगे, आपको कोई रिमूव नहीं कर सकता। बट रिमेम्बर, रिकॉर्डिंग वगैरह होने के कारण एंड यहाँ पे नंबर्स आपके तुरंत शो होते हैं। आपके नंबर सारे उस ग्रुप के द्वारा ऐड किए गए हैं। आपका जो एप्लीकेशन है ज्ञानज्योत विद्यालय, उसके द्वारा यहाँ पे ऐड किया है ना, तो आपके जो भी एक्टिविटीज है वो यहाँ आ जाती है। अगर आपको लीव करने को कहा गया है तो आप लीव कर दीजिए। Dubey Raj, please leave this class. Okay.